We are on a part two of the Copyright Acts. Here we have a 20 case laws on different from the Supreme Court of India. Over to you, sir. Thank you. So now I will explain you 20 important leading case laws related to copyright with its citation in brief facts, decision also, and ratio descent also. So how much wealth you are getting from this presentation. So first important case is R.G. Anand versus Deluxe Films. Citation AIR 1978 SC 1613. Facts: the plaintiff alleged that the film New Delhi copied his play Hum Hindustani. Supreme Court का decision. The Supreme Court held that there was no infringement. Ratio descendi. इसमें ये केस लॉ से कौन से प्रिंसिपल डेवलप हुए हैं? दैट इज कॉल्ड रेशियो डिसेंडेंट. इसमें 3 प्रिंसिपल डेवलप हुए हैं. Copyright protects only the expression of ideas, not the idea themselves. Similarity of theme alone is insufficient, and the overall impression test was evolved. तो ये सब समझने के लिए ये केस लॉ डिटेल में पढ़ना चाहिए. सेकंड, ईस्टर्न बुक कंपनी वर्सेस DB मोडक. Citation 2008 यानी कि 2008 1 SCC 1. Facts: publishers of SCC law reporters claim copyright over edited judgments and headnotes. Decision: the court granted limited copyright protection. Ratio: introduced the modicum of creativity test. Mere labor, sweat and prose is insufficient. Editorial skills and arrangement may qualify for protection. 3. Indian Performing Rights Society Limited versus Eastern India Motion Picture Association. Citation AIR 1977 SC 1443. Facts: issue related to ownership of music and lyrics used in film. Decision: producer was held to be first owner of copyright in cinematographic films unless there is a contract to the contrary. तो सिनेग्राफिक फिल्म्स में प्रोड्यूसर जो रहता है उसके पास ही कॉपीराइट रहता है. अगर राइटर ने उसको वैसा कुछ भी लिख के नहीं दिया है या कुछ एग्रीमेंट नहीं है वैसा तो. रेशो एक प्रिंसिपल जो एक केस से उभरा है वो ये है. कंपोजर एंड lyricists lose separate performing right once incorporated into film unless reserved contractually. Clarifies section 14 and 17 of the Act. Academy of General Education versus B. Malini Malya. Citation 2009 4 SCC 256. Facts: dispute regarding adaptation of Yoga Shanga literature works. Decision: the court protected the original dramatic work. Ratio: adaptation without authorization amounts to infringement. Literacy and dramatic works received broad protection. 5. Entertainment Network India Limited versus Super Cassette Industries Limited. Citation 2008 13 SCC 30. Facts: radio broadcaster sought compulsory licenses to broadcast songs. Decision: Supreme Court recognized compulsory licensing powers. Ratio: copyright is not absolute. Public interest and access are relevant considerations.
interpreted Section 31 of the Copyright Act. 6. Super Cassettes Industries Limited versus Music Broadcast Private Limited. Citation 2012 5 SAC 488. याद रखो दोस्तों, अगर कॉपीराइट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसमें आते हैं तो सब इंडस्ट्रीज के साथ, फिल्म इंडस्ट्री के साथ, बड़े बड़े उद्योग के साथ ही आपके कनेक्शंस आते हैं. सो फॉर लीगल प्रैक्टिस दिस इज वेरी वेरी वाइटल थिंग, एंड फॉर अपीलेट प्रैक्टिस आल्सो दिस इज वेरी. लेकिन ये बड़े बड़े कंपनी के रहते हैं ना, इनके बड़े बड़े लॉ फर्म के थ्रू ही मैटर आते हैं, डायरेक्ट कभी मैटर नहीं आते. सीनियर एडवोकेट के पास भी डायरेक्ट कभी मैटर नहीं आते हैं. ये बड़े बड़े लॉ फर्म के लिए आते हैं, जैसे हमारा JSS सुप्रीम लीगल LLP हैं, बाकी जो लॉ फर्म है, ऐसे लॉ फर्म के पास ही ये मैटर आते हैं, क्योंकि उनको मालूम रहता है कि लॉ फर्म में प्रॉपर सेटअप रहता है, अलग अलग चीज़ के एक्सपर्ट्स रहते हैं, सीनियर एडवोकेट के पैनल्स रहते हैं, ड्राफ्टिंग के पैनल्स रहते हैं, हर चीज़ का प्रॉपर ख्याल दिया किया जाता है. सो ऑलवेज बेटर टू कनेक्ट एनी लॉ फर्म. आप क्या करो, अलग अलग लॉ फर्म में जाके बात करो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन कॉपीराइट लिटिगेशंस, और उनको बताओ कि आई एम इंटरेस्टेड इन कॉपीराइट लिटिगेशन. तो आप जब भी हमारी ज़रूरत है आप बुला सकते हैं. किसी को काम नहीं मांगना, खाली इंट्रोडक्शन करने के लिए जाना कि भाई ऐसे ऐसे हम इंट्रोडक्शन करने के लिए आए, हम इसमें दिलचस्पी रखते हैं, जब भी हमारी ज़रूरत है बुला. तो जब भी उनको ज़रूरत रहती है, और बीच में वापस मिलने के लिए जाना, या उनके बर्थडे मैरिज एनिवर्सरी रहते हैं लॉ फर्म वालों के, उनको थोड़ा ग्रीट करना. If you are doing that, then you will get the good connection with the different law firms, and there may be a chance to get the work. और चांस मिलने के बाद अगर आप सोना कर देते हो काम, पूरा डिवोटेड का काम करते हैं, तो फिर राइजिंग स्टार बन जाते हैं आप, ये याद रखना. अभी ये सुपर कैसेट इंडस्ट्री बोले तो ये इसका है, टी सीरीज का है, टी सीरीज कंपनी है. सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस म्यूजिक ब्रॉडकास्ट प्राइवेट लिमिटेड. साइटेशन 2012 5 SCC 488. Facts concern royalty fixation for FM radio broadcasting. Decision court upheld statutory licensing framework. Very good. Ratio balance between copyright owners' rights and public dissemination. Reasonable royalties principles recognized. ऑडियंस में किसी को इंटरेस्ट है, कोई लॉयर है, आपका 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप जरूर मनोज को कांटेक्ट करके रखिए. हमारे लॉ फर्म का इंचार्ज ही कॉरपोरेट मैटर का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ का, ये मनोज कुमार चौधरी है. उसको कांटेक्ट करके रखिए. तो उसको बोलना कि हमारे को इंटरेस्ट है, तो हम आपको ड्राफ्टिंग पैनल के ऊपर या अलग अलग पैनल के ऊपर ले सकते हैं, और वो हिसाब से हम आपको काम भी डिवाइड करके दे सकते हैं जब हमारे पास काम आता है तब. बट आवर फर्म इज फोकसिंग ओनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. लेकिन आप दूसरा किसी कोर्ट का प्रैक्टिस करते हैं तो भी आप बता देना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर वो टाइप का कुछ मैटर आता है तो हम डील नहीं करेंगे, लेकिन आपको डील करने के लिए जरूर बोल सकते हैं. स्पेसिफिकली जहाँ पे बॉलीवुड इंडस्ट्रीज वगैरह है, बॉम्बे, यहाँ पे ये मैटर थोड़े से ज़्यादा चलते हैं. तो थोड़ा सा बॉम्बे वाले जो लोग हैं वो करो. हमारे भी बॉम्बे में ऑफिस खुल रहा है JSS का, एक जून के बाद खुलेगा, जुलाई में खुलेगा. लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट ही फोकस करते हैं, तो हम बॉम्बे में ऑफिस खोलेंगे खाली सुप्रीम कोर्ट के मैटर के लिए. तो आपको मुझे बॉम्बे में मिलना भी पॉसिबल होगा. वंस इन अ मंथ मैं फिजिकली आऊँगा. बाकी दिन कभी भी आप हमारे परेल के ऑफिस में जाके मेरे से वीडियो कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, और परेल के ऑफिस में जाके हमारे जो भी एसोसिएट लॉयर रहेंगे उनको मिलके आप बातें भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है. देन ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड. Citation 2010 1 SCC 161. Facts: dispute over unauthorized use of sound surround recording. Decision: court restraint infringement. Very good. Ratio: sound recording enjoy independent copyright protection. Unauthorized reproduction amounts to infringement. 8. State of Andhra Pradesh versus Nagoti Venkatramana. Citation AIR 1996 SC 218. जैसे हमारे पास बॉम्बे में बॉलीवुड है ना, वैसा उधर भी बहुत, साउथ इंडिया में बहुत फिल्म इंडस्ट्री बड़ी बड़ी है. तो आप कनेक्शन वहाँ पे भी बढ़ा सकते हैं थोड़े से इसके लिए. और नॉर्थ इंडिया में भी हमारा ये नोएडा में, हमारे न्यू अशोकनगर के बाजू में ही नोएडा में
फिल्म इंडस्ट्री है उत्तर प्रदेश का, वो भी अच्छा डेवलप इंडस्ट्री है। तो जिस लाइन में आपको इंटरेस्ट रहता है ना, वो लाइन के बड़े बड़े कंपनी को इसको उसको कनेक्शन करके करना, उनको मेल रखना, लेकिन सॉलिसिट नहीं करना, कभी काम नहीं मांगना, ये याद रखना। बिकॉज वी आर इन नोबल प्रोफेशन। हमको कभी किसी के सामने भीख नहीं मांगना है। खाली उनको पता चलना चाहिए कि आप उसमें के एक्सपर्ट हैं, और आपका इंट्रोडक्शन देना इतना ही पर्याप्त रहता है, ये याद रखना। काम मांगने के बाद आपका दर्जा भिखारी का होता है और वो देने वाला हो जाता है, और भीख भीख मांगने वाला आदमी कभी किसी को पसंद नहीं आता है। अगर हमको कोई भीख मांगता है तो हम क्या बोलते हैं, आगे जाओ बाबा, आगे जाओ बाबा, ऐसा ही होता है। इसलिए डोंट सॉलिसिट, डोंट डिमांड एनी वर्क टू एनीबॉडी, खाली इंट्रोडक्शन कर दीजिए। बस इंट्रोडक्शन कर दीजिए, भाई मैं एडवोकेट हूँ और ये काम सब देखता हूँ। कभी भी आपको कुछ भी तकलीफ है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो देने के एंगल से बात करो, लेने के एंगल से बात करो। एक आर्ट होता है दोस्तों, हम ये आर्ट शुरू से ही सीखे हैं। हम जब 1989 में सनद लिए हमारी, उसी उसके पहले से ही हम हमारे पास मैटर आ रहे थे, और हम अलग अलग लॉयर के थ्रू फाइल करते थे। और जब हमारा पास सनद आ गया, मेरे 14 अगस्त 1989 का सनद है। मैं 15 अगस्त को चाहता था, लेकिन 15 अगस्त को बार काउंसिल का ऑफिस बंद था, बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा, छुट्टी के कारण। इसलिए उन्होंने 14 अगस्त को मीटिंग करके वो सैंक्शन कर दिया। तो लेकिन मैंने 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त को जो केस फाइल किए, मैंने 4-5 केस फाइल किए थे 16 अगस्त को 1989 को। याद रखना, कोई जूनियर लॉयर एट द एज ऑफ 22 4-5 केसेस पहले ही दिन फाइल तभी कर सकता है जब वो उसका ग्राउंड वर्क पहले तैयार करके रखता है। तो एक सिस्टमेटिक एफर्ट्स लेने पड़ते हैं दोस्तों। एक कभी इसके ऊपर एक स्पेशल कोई पॉडकास्ट, मैं हम हमारा पॉडकास्ट तो इसके ऊपर नहीं लेंगे। लेकिन कोई अगर अननोन व्यक्ति कोई चैनल अगर लेना चाहता है, मेरे पूरा करियर के ऊपर एक फोकस करना चाहता है, तो जरूर मैं रिवील करूंगा कि मैं कोर्ट में आने के पहले से कैसे प्लानिंग करता था, कोर्ट में आने के बाद कैसे प्लानिंग किया, फिर तहसील कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैसे गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फिर मैं हाई कोर्ट कैसे गया, हाई कोर्ट के साथ साथ मैं सेस्टेट का काम कैसे करता था, और वहाँ से फिर मैं सुप्रीम कोर्ट कैसे आया, सुप्रीम कोर्ट में काम करते करते मैंने नेशनल इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन मैटर कैसे हैंडल किए, मैं बाहर के देशों में भी आर्बिट्रेशन मैटर के लिए कैसे जाता था, अभी ऑनलाइन कैसे करते हैं, ये सब कुछ जो है ये हिस्ट्री बताने के लिए मुझे अभी 1 मिनट भी नहीं लगा। लेकिन ये रिवेलिंग है, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स है, बहुत अच्छी चीज़ें है। लेकिन हम हमारा नहीं करेंगे, हम कोई दूसरा कभी लेगा तो जरूर इसके बारे में हम सोचेंगे। हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं करेंगे ये चीज़ें, क्योंकि खुद के बारे में खुद ही प्लेटफॉर्म के ऊपर वो चीज़ें रखना अच्छा चीज़ नहीं है। हाँ, आपके लिए नॉलेज के लिए हम ये वेबिनार कर रहे हैं, ये हमारे लिए दिस इज आवर नेशनल ड्यूटी है। हम कोई उपकार नहीं कर रहे हैं आपके ऊपर। हमारे गुरु नानी पालिके वाला है, नानी पालिके वाले कोई हमारी आदरांजलि है कि अवेयरनेस का काम करते रहना है मरते दम तक। इसलिए हम ये लॉयर के लिए, लॉ स्टूडेंट के लिए करते रहेंगे। सो ये 8 नंबर का केस है, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस नागोटी वेंकटरमना, citation AIR 1996 SC 218. Facts case involves sale of printed copyright material. Decision, conviction upheld. Ratio, mainstream is not always essential for copyright offenses. Strong anti-piracy approach adopted. 9. Midas Hygiene Industries Private Limited versus Sudhir Bhatia. Citation 2004, 3 SCC 90. Facts, action for injunction involving intellectual property infringement. Decision, court granted injunction. Ratio, in IP infringement matters, injunction should ordinarily follow. Delay is not a fatal where infringement is evident. 10. Najma Heptullah versus Orient Logman Limited. Citation AIR 1989 SC 1238. Facts, dispute over publication right in Maulana Azad's writings. Decision, court examine ownership and publication rights. Ratio, copyright ownership can arise through assignment and testimonial succession. Moral and proprietary rights distinguished in this case. Very important case in copyright.
Case 11, Civic Chandran versus Amini Amma. Citation 1996 PTC 329. Through primarily Kerala High Court repeatedly replied upon nationality. Facts: parody play allegedly copied original drama. A decision: parody treated as a fair dealing. A ratio: criticism and review exceptions are important. Freedom of expression balanced with copyright. 12. Syndicates of the Press of the University or Cambridge versus B.D. Bhandari. Citation: educational copyright jurisprudence. Facts: unauthorized reproduction of academic materials. Decision: protection granted to publisher. Ratio: educational work enjoy full copyright protection. Commercial photographing may constitute infringement. 13. Manu Bhandari versus Kala Vikas Pictures Private Limited. Citation: AIR 1987 SC 1443. Facts: author objected to extortion of her novel in film adaptation. Decision: court protected author's moral rights. Very good. Ratio: authors possesses special moral rights under section 57. Distortion prejudicial to author's reputation action actionable. 14. Amar Nath Sengal versus Union of India. Citation 2005 30 PCT 253. Facts: mural created by artist was removed and damaged. Decision: artist moral right upheld. Very good decision. Ratio: moral rights survives independently of ownership. And another ratio: artist integrity protected under section 57. Case number 15. Star India Private Limited versus Piyush Agrawal. Citation: broadcast right jurisprudence. Facts: unauthorized online dissemination of cricket broadcasters. Decision: court recognize broadcaster rights. Ratio: broadcast reproduction rights are enforceable. Digital piracy constitute infringement. 16. Krishnika Luria versus Sham Vittal Rao Devkata. Citation 2016 to SCC 521. Facts: dispute over title Deshi Boys. Decision: court held film title generally not copyrightable. And ratio: short title lacks sufficient originality. ट्रेडमार्क लॉ में प्रोवाइड बेटर रेमेडी. इसलिए सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का अभ्यास चाहिए कि जो चीज़ें कॉपीराइट में नहीं कवर होगी वो पेटेंट में कवर हो सकती है. ये एनालिटिकल मैंने पहले प्रेजेंटेशन में दिया है, जरूर आप देखना कि सब के सब 8 के 8 जो हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लॉ हैं वो एग्जैक्टली कौन से लॉ कौन से चीज़ के लिए. मैं अगले किसी चीज़ में वापस रिपीट करूंगा इसको और एंड में लास्ट सेशन में हम पूरा की पूरा इसको वापस एनालिसिस करेंगे. देन 17 इंजीनियरिंग एनालिसिस सेंटर ऑफ एक्सलेंस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. साइटेशन 2021 3 SCC 742. फैक्ट्स: इशू कंसर्न सॉफ्टवेयर licensing and royalty payments. Decision: SC held resale use of software copies does not necessarily transfer copyright. Ratio: distinction between copyrighted articles and copyright itself. Important for software copyright jurisprudence. 18. NIT Pro International versus State of NCT of Delhi. Citation 2022 10 SCC 221. Facts: issue whether copyright offenses are recognized. Decision: Supreme Court held offenses under the section 63 are cognizable and non-bailable. Ratio: police can
investigate without magistrate order, strengthened criminal enforcement of copyright law. Very good decision, very good case. 19 Messrs Entertainment Network India Limited versus Pornographic Performance Limited. Pornographic Performance Limited. Citation: licensing jurisprudence under Copyright Act. Facts concerned public performance rights and royalties. Decision: court emphasized fair royalty determination. Ratio: copyright societies must function reasonably. Licensing cannot be arbitrary. 20 Govindan versus Gopala Krishna. Citation: originality jurisprudence. Facts: issue regarding originality in compilations and literacy work. Decision: protection recognize whether sufficient intellectual efforts shown. Ratio: originality required independent skill and judgment. A compilation may qualify for protection. Important legal principle emerging from Supreme Court copyright jurisprudence. हम आपको कौन से केस से कौन सा प्रिंसिपल क्या हुआ है, इमर्ज हुआ है, ये कंपेरेटिवली देना चाहता है. बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे जाने का जल्दी है, ये जरूरी है, मुझे निकलना है, लेकिन ये बताना भी जरूरी है. लास्ट पार्ट है हमारे प्रेजेंटेशन का. मैं आपको 2 कॉलम में बता रहा हूं, एक प्रिंसिपल और दूसरा है लीडिंग केस. आइडिया एक्सप्रेशन डिकोटॉमी RG आनंद केस. मॉडिकम ऑफ क्रिएटिविटी ईस्टर्न बुक कंपनी केस. राइट्स ऑफ ऑथर्स मनु भारती एंड अमरनाथ सेंगल केस. प्रोड्यूसर एज फर्स्ट ओनर इन फिल्म्स IPRS केस. कंपल्सरी स्टैट्यूटरी लाइसेंसिंग एंटरटेनमेंट नेटवर्क केस. एंटी-piracy criminal enforcement NIT Pro International case. Software copyright distinction engineering analysis case. Fair dealing parody civic Chandran case. Then protection of sound recording gramophone companies case. These judgments collectively form the backbone of Indian copyright jurisprudence under the Copyright Act 1957. दोस्तों, ये वापस आपको इसको रिवाइंड करके प्ले कर सकते हैं, ये रिमेंबर करने के लिए, ये भी कौन से प्रिंसिपल कौन से केस लॉ से आए हैं. तो इट इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर ये. तो किसी भी कंपनी के साथ आप जब जुड़ते हैं तो पूरा की पूरा नॉलेज आपको कंपनी को देते आना चाहिए. ये चीजें. Let me open the mic of Manoj Kumar Chaudhary. He will conclude. Manoj, you can unmute yourself and conclude this session. Thank you, sir, for such a great lecture. Even you are tight in a time pressure for today. You have another meeting Yes. back to back. And all the 20 cases are very useful. And we are, to get a more from that cases, we have to go for with that case laws and understand what are the ratio decidencies and what are the things that has been explained. Thank you very much, sir. Thank you, participants. So we'll Yes. meet another lecture next हाँ, week. हाँ, एक मिनट ना, मैं खाली वो जो हमारा लास्ट पार्ट रहता है ना, वो खाली बताता हूँ कि मुझे कुछ कमेंट्स आए हैं, वो बताता हूँ. विजय मोहन रेड्डी, गुड आफ्टरनून. देन विजय मोहन रेड्डी, वो वुड लाइक टू मीट यू सोमानी जी, जयप्रकाश जी. देन आशीष सिंह एडवोकेट है. यस, आई हैव सेक्शन 302 bail rejected at Patna High Court. I am coming to file SLP regular bail at SC. जरूर वेलकम आशीष जी. सुप्रीम कोर्ट में आपका स्वागत है. हमारी कुछ भी हेल्प लगती है तो हमको कांटेक्ट कर सकते हैं. मनोज को फोन कीजिए, मनोज आपको हमसे जोड़ देगा, कोई इशू नहीं. और विजयानंद रेड्डी ने वापस एक बार बोला है, थैंक यू जयप्रकाश जी एंड मनोज जी. सो थैंक यू वेरी मच मनोज. यू हैव ऑलरेडी कंक्लूडेड दिस सेशन. सो बाय. थैंक यू वेरी मच.